Namaste, my dear students of TDC Part 3 Chemistry Honours. I am Dr. Gajendra Prasad Singh, Head and Associate Professor, Department of Chemistry, Jamnilal College, Hajipur, Vaishali, a constituent unit of BRA, BU, Muzaffarpur. My dear students, today I am going to discuss a structure of phenanthrene. मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग phenanthrene की संरचना पर विचार करेंगे. Its first point is elemental analysis and molecular weight determination show that the molecular formula of phenanthrene is C14H10. तात्विक विश्लेषण एवं आणविक भार निर्धारण प्रक्रिया यह बतलाता है कि phenanthrene का आणविक सूत्र C14H10 है. Now we come to the second point. Like other aromatic hydrocarbons such as benzene, naphthalene, it gives addition and substitution reactions under suitable conditions. This indicates that phenanthrene is possibly made up of 3 benzene rings. स्पष्ट है बेंजीन, नेफ्थलीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की तरह phenanthrene योगशील प्रतिक्रियाओं में साथ ही साथ प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं में सुटेबल कंडीशंस में प्रतिफल प्रदान करता है. यह स्पष्ट करता है कि phenanthrene संभवतः 3 बेंजीन रिंग्स से बने होते हैं, यानी phenanthrene 3 बेंजीन रिंग्स से बना होता है. Now we come to the point number 3. On oxidation with sodium dichromate and acetic acid, phenanthrene forms phenanthraquinone, which on further oxidation with dichromate and sulfuric acid gives diphenic acid, and this on distillation with soda lime gives diphenyl. phenanthrene सोडियम डाइक्रोमेट तथा एसिटिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर phenanthraquinone देता है और यह phenanthraquinone पुनः डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर डाइफेनिक एसिड देता है और यह डाइफेनिक एसिड जब सोडा लाइम के साथ स्रवित किया जाता है तो डाइफिनाइल देता है. दिस indicates the structures of the last 2 compounds are known.
यह बताता है, यह स्पष्ट करता है कि डाइफेनिक एसिड तथा डाइफिनाइल, ये जो दो कार्बनिक यौगिक हैं, इनकी संरचना हमें ज्ञात है। देयरफॉर phenanthrene contains the skeleton as shown in the note। ये डाइफेनिक एसिड तथा डाइफिनाइल की संरचना हमें बताता है कि जो स्केलेटन कार्बन का फेनंथरीन में है, वही कार्बन स्केलेटन डाइफेनिक एसिड तथा डाइफिनाइल यानी स्पष्ट रूप से फेनंथरीन में डाइफेनिक एसिड का कार्बन स्केलेटन दिखाई पड़ता है। यानी द स्ट्रक्चर ऑफ द लास्ट टू कंपाउंड्स आर नोन। डाइफेनिक एसिड और डाइफिनाइल का संरचना प्राप्त दिखा हम लोगों को ज्ञात है। देयरफॉर phenanthrene contains the skeleton as given in the note। That here two engine rings are separated and one carbon atom is attached with one benzene ring and the other carbon atom with the other benzene ring attached as shown in the figure that in the note। Now we come to the fourth। This is equivalent to C14H10। स्पष्ट है कि फेनंथरीन का जो कार्बन स्केलेटन है वह C14H8 को बताता है। Thus two hydrogen atoms are missing। This may be fitted in by closing the middle ring। A possible structure of phenanthrene is given here। यानी जब इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर सी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C14H8 जो दिखाया गया, उसमें दो हाइड्रोजन छूट रहा है, दो हाइड्रोजन मिस कर रहा है। अगर इन दोनों हाइड्रोजनों को फिट कर देते हैं मिडिल रिंग में, तो संभवतः जो 4 पॉइंट में दिए गए हैं वही स्ट्रक्चर फेनंथरीन का है। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5। दिस स्ट्रक्चर ऑफ फेनंथरीन हैज बीन कन्फर्म्ड बाय इट्स सिंथेसिस। यानी पॉइंट 4 में जो स्ट्रक्चर दिया गया है वह फेनंथरीन का स्ट्रक्चर इसके सिंथेसिस, इसके संश्लेषण से भी ज्ञात होता है। दिस संश्लेषण इज नोन एज हावर्थ सिंथेसिस। इसको हावर्थ सिंथेसिस के द्वारा भी कंफर्म किया गया है। यानी फेनंथरीन के स्ट्रक्चर को, जो ये स्ट्रक्चर पॉइंट नंबर 4 में दिखाया गया है, इसको हावर्थ सिंथेसिस के द्वारा भी कंफर्म किया गया है। नेफ्थलीन reacts with succinic anhydride in presence of aluminium chloride to give 1-naphthyl propionic acid, and this 1-naphthyl propionic acid on reduction with zinc amalgam and HCl gives 1-naphthyl butyric acid, and this on treatment with sulfuric acid gives 1 keto 2,3,4 trihydrophenanthrene, and this on reduction with zinc amalgam and HCl gives 1,2,3,4 tetrahydrophenanthrene, and this on heating with selenium gives phenanthrene। स्पष्ट है
नेफ्थलीन की जब प्रतिक्रिया सक्सिनिक एनहाइड्राइड के साथ अल्मीनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो 1 नेफ्थाइल प्रोपायोनिक एसिड प्राप्त होता है। इस 1 नेफ्थाइल प्रोपायोनिक अम्ल को क्लेमेंसन रिडक्शन यानी रिएक्शन विथ जिंक एमलगम एंड HCl से कराने पर 1 नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड प्राप्त होता है। एंड दिस 1 नेफ्थाइल ब्यूटायरिक एसिड ऑन ट्रीटमेंट विथ सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कर 1 कीटो 2,3,4 ट्राईहाइड्रोफेरानथ्रीन देता है, जो जिंक एमलगम तथा HCl से प्रतिक्रिया कर 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफेरानथ्रीन देता है। और यह 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोफेरानथ्रीन सेलेनियम के साथ गर्म किए जाने पर फेरानथ्रीन देता है। इसे हम हाउअर्थ सिंथेसिस कहते हैं, यानी नेफ्थलीन से फेरानथ्रीन प्राप्त होता है। यह जो प्रतिक्रिया है, यह जो सिंथेसिस है फेरानथ्रीन का, इसके स्ट्रक्चर को कंफर्म करता है। नाउ वी कम टू पॉइंट नंबर 6। Phenanthrene is best represented as resonance hybrid of 5 resonating structures। मेरे प्रिय छात्रों, स्पष्ट है फेनांथरीन के 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस पॉइंट नंबर 6 में दिखाए गए हैं, जिसे भली भांति देखा जा सकता है। और ये फेनांथरीन इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये जो 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनके रिजोनेंस हाइब्रिड हैं फेनांथरीन। द रिजोनेंस एनर्जी ऑफ फेनांथरीन इज 92.5 किलो कैलोरी पर मोल। रिजोनेंस एनर्जी इसका यानी फेनांथरीन का 92.5 किलो कैलोरी पर मोल है। इस प्रकार से बेंजीन का सही स्ट्रक्चर इन 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हाइब्रिड का है, हाइब्रिड जैसा है। इन 5 स्ट्रक्चर्स के हाइब्रिड के रूप में फेनांथरीन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इनके 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से पॉइंट नंबर 6 में दिखाए गए हैं। इस प्रकार से फेनांथरीन इज एन एंगुलर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यह जो है एक एंगुलर पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इट इज आइसोमेरिक विथ एंथ्रासीन। यह एंथ्रासीन के साथ आइसोमेरिक है। इन दिस वे दिस स्ट्रक्चर दैट हियर 3 benzene rings are linked with each other as shown in the note, and in point number 6 it is quite clear that phenanthrene is best represented as resonance hybrid of the 5 resonating structures. This is about the structure of phenanthrene. Thank you, my students.